Hi students. So in the last video lectures, we have discussed already about the IUDs. Now in today's lecture, we'll continue with the other methods which are used in the or actually with the methods what we use, or the methods of contraceptions actually. So in that we have discussed natural barrier. Then there are some other methods including IUDs already, that is intrauterine devices we have discussed. तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर दैट इज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? व्हाट इज द हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, when we can say that individual, a particular individual is reproductively active or healthy. So there are certain criteria we have discussed, and we have started our discussion with problems, reason of the population explosion in India, in our country, and also in the world. What are the reason and what are the possible methods or the strategies what we can actually adopt to tackle this situation. So we have, in that course we have already started and have discussed certain important topics, and we have discussed the methods of contraception, and in that we have discussed natural method, then we have discussed barrier method and IUDs. Now we'll start and we'll continue with the discussion, we'll continue with the chapter, and the next topic we'll talk that is about केमिकल मेथड. तो केमिकल मेथड के बारे में बात करेंगे. ठीक है, आईओडीज हो चुका है. we'll talk about chemical methods. See, chemical methods. Spermicidal gel, liquid, tablets are available. Example क्या है? Lactic acid, KMNO4 used by female. So spermicidal gel, liquid, tablets are available in the market right now. And these medicines or these drugs can be used, or these chemicals can be used to actually to kill the sperm basically, or to avoid the unwanted pregnancy. And these things and these chemicals mostly used by female, okay, to prevent or to actually uh, stop the unwanted pregnancies. So these chemical methods are also used. Okay, so contraception can also be done by chemicals as well, like lactic acid, KMNO4 in case of female. Otherwise, there are some tablets also available in the market. There are some spermicide gel is there also. It can be also used. Okay, but the most common thing that people use, okay, that is your tablets, because it is very easy to consume. It is very easy to available. ठीक है, तो अभी हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में द contraceptive pills or the tablets are also available. Next is hormonal pill, that is also used by female. And this hormonal pill is what? It is actually nothing but it is a combination of estrogen and progesterone hormone. जैसे अभी हमने पढ़ा था, we have already discussed in the menstrual cycle, and we have seen that the main role in the menstrual cycle is the level of progesterone and estrogen. So by maintaining the concentration of progesterone, or the level of concentration of progesterone and estrogen, the entire menstrual cycle can be controlled, that we have already discussed. So what we do, we have actually developed some pills which have combination of progesterone and estrogen hormone inside it. Now what happened when the female is taking that pill? So by taking they're taking this pill, it can manage the concentration of progesterone and estrogen. Okay, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अगर लेवल मेंटेन कर सकते हैं, सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो, इट कैन बी आल्सो इजीली मेंटेन. अगर मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाएगा, तो फिर आपका जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन का, सॉरी आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो स्टार्ट हो जाएगा फिर से, है ना. तो बाय दिस हार्मोनल बैलेंस the unwanted pregnancy can also be controlled. So that is also one of the technique or method which is used by female, and they have to take it on a regular basis. Okay, now how do actually they use it?
This is available in the pill form, tablet form, so they can consume it directly. Right? Now, 5th or 6th day to 20th day, it inhibits the secretion of FSH and LH. See, by this type of hormonal pills, if someone is consuming, then what happens? From 5th to 6th day to 10 to 20th day, it inhibits the secretion of FSH and LH. अगर FSH और LH का अगर सीक्रेशन है, उसी को अगर इनहिबिट कर देगा कोई मेडिसिन, कोई ड्रग, तो अगर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही नहीं होगा तो फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। और मान भी लेते हैं कि अगर फॉलिकल डेवलप भी हुआ, ग्राफिन फॉलिकल बना भी, तो रप्चर ही नहीं होगा। जो आपका LH ओव्यूलेशन करवाता है वो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, तो जो आपका सेकेंडरी आपका जो साइड या जो एग है वो बाहर नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो बाय दिस प्रोसेस एक्चुअली वी कैन आल्सो कंट्रोल we can maintain, we can control the gametogenesis as well in case of female. Okay, तो क्या होगा एज ए रिजल्ट, फीमेल का जो ओव्यूलेशन वो स्टॉप हो जाएगा, वो स्टेज अभी हमने बताया पिछले पेज में आपने देखा कि FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर ये दोनों ही अगर ठीक से डेवलप नहीं हुए, इनका सिक्रीशन इनहिबिट हो गया, कम कर दिया गया, तो फिर क्या होगा, इनका इफेक्ट भी नहीं होगा, मतलब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर नहीं होगा, ओवम बाहर नहीं निकलेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। सो एज ए रिजल्ट ओव्यूलेशन विल स्टॉप। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर इवन दो स्पर्म्स आर कमिंग, स्पर्म इज आल्सो अवेलेबल, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो जाइगोट फॉर्म, राइट। So eggs and sperm both should be required at the same time. Next example जो आपके pills use करते हैं basically which are most common in our country, that is your Mala-D and Saheli. Saheli is actually, it is a non-steroidal ketochroman. It's a non-steroidal ketochroman. It's a kind of drug what we use. What is actually very common and very famous in our country, which is used by normally by female, right? And it should be used by female only. This drugs are for basically menstrual cycle control, and this menstrual cycle control is done by this medicine. Examples are Mala-D and Saheli. And this drug or this medicine was developed by CDRI, that is Central Drug and Research Institute, Lucknow. CDRI is the Central Drug Research Institute, which is located in Lucknow. So let me tell you, there are many central laboratories or research institutes are developed by our government to do research in all the different different subjects, all the different things separately. So this institute, that is your Central Drug Research Institute, it is doing research to develop new types of drugs, vaccines for treatment of different types of diseases, and which is located in Lucknow. Fine. Now, next is implant. So implant can also be used with to actually implant can also be used to check or control the menstrual cycle. अब implant क्या है? It is nothing but it's a small needle-like structure. Implant क्या होता है? एक छोटा सा needle-like structure होता है, ठीक है, जो कि स्किन के नीचे implant कर सकते हैं हम फीमेल के केस में. So the small needle-like or flat device implanted under the skin के नीचे हम उसे fit कर सकते हैं, ठीक है, surgically. Now what is happening? What is its role? They keep releasing hormones into the blood for long duration. जैसे हमने बात किया कि अगर हम ड्रग जो है जैसे Mala-D, Saheli अगर फीमेल कंटिन्यूसली इन रेगुलर बेसिस अगर कंज्यूम करती है, तो they can control, as a result they can control the menstrual cycle by maintaining the different hormone level like FSH, LH, progesterone, estrogen, etc. वैसा वही सेम चीज हमने एक नया डिवाइस बनाया है जिसमें कि ऑलरेडी द हार्मोन्स आर अवेलेबल, एंड दिस इज अ स्मॉल डिस्क लाइक और निडल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी फीटेड अंडर द स्किन. एंड इससे क्या होगा कि बार बार दवाई खाने की जरूरत नहीं है, फीमेल को बार बार ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली उस डिवाइस से जो इम्प्लांट है उससे जो हार्मोन है वो रिलीज होता रहेगा कंटिन्यूसली ब्लड में, ठीक है. तो अलग से दवाई खाने की जरूरत नहीं है. तो जो डिवाइस है उसी से कंटिन्यूसली हार्मोन रिलीज हो जाएगा और दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल.
right? And that is our target. Next is सर्जिकल मेथड. और क्या मेथड है? अभी तो हमने क्या किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने कंट्रोल करके बर्थ को कंट्रोल कर लिया, अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर लिया. और क्या प्रोसेस है, और किस प्रोसेस में हम ये काम कर सकते हैं, बाय व्हिच वी कैन, व्हाट आर द अदर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस. नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड. और क्या कर सकते हैं अभी सर्जिकली भी हम मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव जो फेज है या जो एक्टिव रिप्रोडक्टिव जो कंडीशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे करते हैं हम? So let us discuss. So we can control by surgically. Surgically, first we talk about vas deferens ligate or ligation. Vas deferens किसमें होता है? It is a part of the male reproductive system. हमने डिस्कस किया था, ठीक है. इसी को बोलते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक है. तो मेल के केस में हम क्या करते हैं, जो vas deferens है उसको हम कट करके टाइट कर देते हैं. इससे क्या होगा, स्पर्म का जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा. अगर स्पर्म फ्लो नहीं होगा, सीमेन फ्लो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, आपके फीमेल के बॉडी में वो जाएगा नहीं ठीक से. तो उससे क्या होगा, आपका जो रिप्रोडक्शन है, जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो रुक जाएगा, है ना. सो दैट इज सर्जिकली व्हाट वी डू, वी एक्चुअली कट एंड टाई द वास डिफरेंस एंड दैट इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी, ठीक है. टेक्निकली इसे क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी. और ये किससे केस में करते हैं, हम मेल के केस में करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज in case of female also we do what, we actually cut and tie, again the same thing, हम कट करते हैं उसको टाई कर देते हैं, ठीक है. and as a result the egg also cannot travel inside the uterus, ठीक है. तो एग भी यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि हमने टाई कर दिया है, उसको कट करके टाई कर दिया, तो वहीं पे रुक जाएगा, कभी आएगा ही नहीं आपके यूट्राइन वॉल तक. इससे क्या होगा कि हम जो आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है या फिर जो मतलब आपकी रिप्रोडक्टिव फेज जो है या फिर जो फर्टिलाइजेशन है वो हम बंद कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं. इससे भी आपका इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ठीक है ना. तो सर्जिकली आल्सो वी कैन, क्या करते हैं मेल के केस में हम क्या कर सकते हैं, हम वास डिफरेंस को कट करते हैं, लाइगेट करते हैं, उसको टाई कर देते हैं. फीमेल में क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और उसको टाई कर देते हैं, है ना. तो इससे क्या होता है कि हम रोक सकते हैं जो आपकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, जाइगोट फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं. तो ठीक है. So there are different methods we were discussing. Next is castration, ठीक है. castration क्या है कि ये एक और टेक्निक है. castration मतलब हम कंप्लीट जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी को रिमूव कर देते हैं, कंप्लीटली पूरा निकाल देते हैं. जैसे मेल के केस में क्या है, टेस्टिस है, तो हम टेस्टिस को ही पूरा निकाल देंगे, ठीक है. फीमेल के केस में क्या है, ओवरी है, तो हम ओवरी को ही पूरा निकाल देंगे, ठीक है. तो इसे बोलते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है. कैस्ट्रेट कर देना, किसी भी इंडिविजुअल को कैस्ट्रेट करते हैं. बट इट इज अ वेरी एक्सट्रीम मेथड, क्योंकि अगर हम ओवरी को या टेस्टिस को निकाल दे तो टेस्टिस और ओवरी का तो सिर्फ गैमेटोजेनेसिस ही काम नहीं है, इसका और भी बहुत सारा काम है. जैसे हार्मोन रिलीज करता है व्हिच हेल्प टू मेंटेन द बॉडीली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आल्सो, इन सम वे इट इज आल्सो हेल्पिंग. तो अगर हम पूरा ही हार्मोन को आपके पूरा ही ऑर्गन को निकाल देंगे तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है. सो इट इज आल्सो यूज्ड मे बी एज अ डिफरेंट और स्पेशल कंडीशन. कैस्ट्रेशन इज नॉर्मली नॉट, इट्स नॉट एक्चुअली इन प्रैक्टिस. ओके. नेक्स्ट इज एमनियोसेंटेसिस. ये हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे आपके रिप्रोडक्शन मेथड, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जब डिस्कस कर रहे थे उसमें मैं डिस्कस किया था आपके साथ थोड़ा एमनियोसेंटेसिस. दैट इज गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. क्या होता है एमनियोसेंटेसिस? इट्स अ प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. क्या है ये? प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है. बहुत ही अर्ली स्टेज में एम्ब्रायो जो हमने डिस्कस किया था, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक जो कैविटी होता है उसमें जो फ्लूइड होता है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड टाइप सिचुएशन होता है, वहां पे एम्ब्रायो डेवलप होता है, मीडियम, लिक्विड मीडियम, ठीक है. और फ्लूइडिक मीडियम, नॉट लिक्विड, इट्स अ फ्लूइडिक मीडियम, राइट. सो दिस that is called amniote. And we are actually, what we do, we study that amniotic, the cells which are available inside the amniotic fluid, that we culture and we study, because those cells are coming, which is coming from the embryo, which is present on the embryo. So those cells we collect from the embryo and we culture it and we study study those cells,
and try to understand that is there any abnormalities are there in the female in the growing fetus or not. ओके इसी को हम बोलते हैं amniocentesis. ठीक है, तो कैसे करते हैं, क्या होता है, let us discuss. First, by ultrasound the location of the fetus thing. पहले हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है उसको यूज करते हैं. उससे हम क्या करते हैं, फीटस का जो लोकेशन है उसको हम डिटेक्ट करते हैं. फीटस प्रॉपर्ली कैसे लोकेटेड है मदर्स वूम में, उसको प्रॉपर्ली हम देखते हैं. ठीक है, then what we do by using a very fine needle, the needles are very fine, very fine. Okay, little amount of amniotic fluid is taken out. क्या करते हैं, बहुत ही फाइन निडल यूज करके मदर्स वूम से बहुत ही केयरफुली, बहुत ही धीरे से हम क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको थोड़ा सा हम उसको कलेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड वो कितने क्वांटिटी कितना होता है इसमें कलेक्ट करते हैं, इट इज टेकन आउट इन वेरी लेस क्वांटिटी, दैट इज ऑलमोस्ट 15 ml और लेस, 15 ml के आसपास या उससे भी कम मिनिमम हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करेंगे सो दैट इज नॉट गुड फॉर द ग्रोइंग फीटस. राइट, सो हम बहुत ही कम कलेक्ट करते हैं. देन इन एमनियोटिक फ्लूइड सेल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, और हमें पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड हमने बात किया था, हमने डिस्कस किया था, डायग्राम भी हमारे पास है, हमने डिस्कस किया था, सो यू कैन रेफर द डायग्राम एज वेल. तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें जो सेल्स होते हैं दोज आर एक्चुअली बिलोंग्स टू द ग्रोइंग फीटस. ठीक है, और दोज आर फीटल सेल. देन व्हाट वी डू, दोस फीटल सेल्स आर कल्चर्ड इन विट्रो, दैट इज इनसाइड द mother's that is actually utilized inside the mother. Sorry for the distance. So then what happened, what we do, we culture. See, क्या हमने क्या किया, पहले हमने सेल को जो है कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको कल्चर किया. वी हैव टू कल्चर इट, द फीटल सेल्स वी नीड टू कल्चर इन विट्रो, दैट इज आउटसाइड द मदर्स बॉडी. ठीक है, और इन ए सिमिलर कंडीशन, बिल्कुल मदर के बॉडी में, मदर्स के वूम में जो कंडीशन है बिल्कुल वैसे कंडीशन में ही हम क्या करते हैं, वो जो सारे सेल है जिसको हमने कलेक्ट किया है उसको हम कल्चर करते हैं. ठीक है, उसके बहुत सारे मान लीजिए हमारे पास 2-3 सेल थे हमने कलेक्ट किए, तो उसको कल्चर करके हम मान लीजिए हमने उसको 50 सेल बना लिया कल्चर करके. क्यों, because it is help us to study. Okay, next what we'll do karyotyping is done. ठीक है, so karyotyping इसके बाद हम क्या करते हैं, karyotype करते हैं वो सारे सेल्स के. ठीक है, क्या होता है karyotype, that is a cell division is arrested in metaphase when the chromosomes are thick and these chromosomes are stained. तो अब क्या करते हैं, जब कल्चर करेंगे तो क्या होगा, सेल डिवाइड होगा. तो जब सेल डिवाइड होता है तो सेल के जो मेटाफेज में जब सेल डिवाइड पहुंचता है सेल, उस समय हम सेल को क्या करते हैं, उस फेज को अरेस्ट कर देते हैं, हम रोक देते हैं. सेल का जो ग्रोथ है हम उसी में रोक देते हैं. क्यों रोक देते हैं, क्योंकि उस समय मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो सबसे थिक होता है. ठीक है, सो देयर इज अ राइट टाइम टू स्टडी द क्रोमोसोम प्रॉपर्ली. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहला अच्छे से समझिए, पहला क्या करते हैं, फीटल सेल को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको कल्चर करते हैं सेम कंडीशन में जो कि मदर्स वूम में है. और जब कल्चर करते हैं तो सेल डिवाइड होगा ना, तो जब सेल डिवाइड होता है हमें पता है उसमें बहुत सारे फेसेस हैं, एनाफेज, मेटाफेज, है ना. तो जब मेटाफेज में आएगा उस समय हम उसको रोक देंगे, उस डिवीजन को, उस सेल कंडीशन को, उस सेल डिवीजन स्टेज को हम अरेस्ट कर देते हैं. हमारे पास केमिकल्स है, उससे सेल उसी स्टेज में रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, आगे डेवलप नहीं होगा, आगे डिवीजन नहीं करेगा, नेक्स्ट फेज में नहीं जाएगा. क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपर्ली अरेंज हो जाता है और वो बहुत थिक होता है, बहुत प्रॉपर्ली विजिबल होता है, क्लियर होता है. Why it is helpful for us? Because it is thick, it is more clear, more visible, so it is better for us to study. There is the right time to study those chromosomes properly, right? फिर हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं by using some chemicals, right? And then we actually study. कैसे करते हैं स्टडी, हम उसका पिक्चर्स लेते हैं, then we take the pictures and they are arranged in a systematic manner. ठीक है, पहले हम सेल को ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, जब वो मेटाफेज में आता है उसको अरेस्ट कर देते हैं, उस स्टेज को अरेस्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, फिर हम उसको स्टेन करते हैं, फिर हम उसका फोटोग्राफ लेते हैं और उसको हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, इट इज गोइंग टू हेल्प अस इफ यू डू दिस, इफ यू स्टडी
those images, those photo pictures, then by that we can understand is there any abnormality in the genetic level or not. Okay, so it is help us to find out any chromosomal defect. Chromosomal कोई भी defect है कि नहीं हम इससे पता कर सकते हैं. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं congenital defects. What is that? Congenital defects. तो कैसे कैसे डिफेक्ट होते हैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम. चलिए, जैसा if one extra chromosome is present, अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमें मिला in 21st chromosome, अगर हमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किसमें मिला 21st क्रोमोसोम में हमें कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिला, इसका मतलब क्या है, then that is known as trisomy and it result into Down syndrome. तो अगर हम किसी केस में अगर हमें ऐसा मिलता है कि जो 21st क्रोमोसोम है वहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमें मिला, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी. और अगर ऐसा है, अगर ऐसा कंडीशन है क्रोमोसोम का 21st में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो फिर जो फीटस डेवलप हो रहा है वो फ्यूचर में आफ्टर बर्थ इट इज द फीटस विल बी टू डेवलप डाउन सिंड्रोम. ठीक है, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, सो देयर इज अ एब्नॉर्मलिटी इन द क्रोमोसोम दैट आल्सो वी कैन आइडेंटिफाई बाय दिस. एक हो गया. दूसरा क्या है, XY क्रोमोसोम कैन बी डिटरमाइंड. अब हम XY क्रोमोसोम भी पता कर सकते हैं. XY क्रोमोसोम को स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, it can be used to determine the sex of the baby. इसी से हम बेबी का जो सेक्स है उसे पता कर सकते हैं. that can be used for sex determination. XY क्रोमोसोम को स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, हम बेबी का सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही अर्ली स्टेज में. ठीक है, सो बाय स्टडीइंग द क्रोमोसोम को स्टडी करके हम बेबी का सेक्स भी जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना. And this is the people are using, and which is illegal. We should not identify the sex of the fetus in the very early stage. Now what is happening, हमने डिस्कस किया था शुरू में कि बहुत सारे स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो बेबी जब ग्रो होता है, जो fetus ग्रो होता है, so they are actually try to identify the fetus in the very early stage by using this type of technique like amniocentesis. Doctors are using it to identify the baby's sex as actually demanded by their patients. So, and what is the purpose? If it is a boy, then they will continue with the baby. If it is not a boy, it's a girl. What they will do? They will go for abortion. So that is a very dangerous practice. Okay. Now, then what happened? Other condition. Let us see. Sometimes what happens? So this is a situation. You can see here XX. It's a normal condition, and sometimes we can see there is XXY. This is an abnormal condition, and this is known as Klinefelter syndrome. इसी को बोलते हैं Klinefelter syndrome. ये भी एक जेनेटिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है और जेनेटिकली प्रॉब्लम है. इससे भी बच्चा जो होगा वो स्वस्थ नहीं होगा, उसको डिजीज होगा. उसका नाम है Klinefelter. तो अब देखो ऐसा क्यों करते हैं. एक तो हम इसलिए आप पूछोगे सर हम ऐसा क्यों करते हैं. देखिए ऐसा हम इसलिए करते हैं कि मान लीजिए बहुत अर्ली स्टेज में, मान लीजिए कि बहुत ही मे बी इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, विद इन द फर्स्ट मंथ अगर हम स्टडी करते हैं और हम पता कर लेते हैं कि ये जो बेबी है जो जन्म लेने वाला है वो एबनॉर्मल है, तो इससे क्या होगा कि बेबी जो होगा उसका लाइफ भी अच्छा नहीं होगा. बिकॉज दिस एबनॉर्मल बेबीज दिस डोंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. एक तो पहले बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं करते हैं, दूसरा है जब तक ये जीते हैं तो तब तक इनको भी बहुत तकलीफ होती है और इनके पेरेंट्स जो भी होंगे उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो अगर ऐसा है कि जो ग्रोइंग फीटस है वो एबनॉर्मल होने वाला है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर legal permitted abortion. Okay, so we can remove that growing fetus at the very early stage. तो हम उसको निकाल सकते हैं. इससे क्या होगा, एबनॉर्मल बेबी जो है वो जन्म नहीं होगा. ठीक है ना. चलिए, so this is the abnormality or another abnormality. दूसरा और एक कंडीशन देखते हैं. ऐसा होता है कि X है और दूसरा जो क्रोमोसोम वो नहीं है, 0, there is no X, so this is X naught कंडीशन. इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम. ये भी एक एबनॉर्मलिटी है. इस पे भी जो फीटस होते हैं जो जन्म के बाद बड़े होते हैं तो उनको ये सिंड्रोम होता है और ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ये एबनॉर्मलिटी है. ये भी सारे जो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी, ये सारे जो अगर हो गए बच्चों को, अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ है तो उसका मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है. उसके बाद फिजिकल ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, which is actually not good for the normal survival. Okay, and which is also very because of that the parents will also
face a lot of difficulties, their life will also be not be normal. Okay. Now, next, और क्या कंडीशन हम देख सकते हैं? 33rd chromosome can be used to understand the sex or sex determination. ठीक है, 23rd जो क्रोमोसोम होता है उसको हम स्टडी करके जो बेबी का जो सेक्स है उसे हम पता कर सकते हैं. दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, राइट? दैट कैन बी यूज्ड to actually understand or to determine the sex of the baby. And normally the doctors use this technique and they study the 23rd chromosome. The technician, they study the 23rd chromosome and they identify the sex of the baby, which is illegal right now. Now it is completely illegal to determine the sex of the growing fetus in India according to the rule, according to Indian law. Right? Now, the female feticide cause a disturbance in the male and female ratio in the society. ठीक है, अब देखो ऐसा अगर है कोई, अगर एमनियोसेंटोसिस जो मेथड है उसको यूज करके क्रोमोसोम नंबर 23 को स्टडी करके ये पता कर लिया कि भैया ये जो ग्रोइंग फीटस है इट इज गोइंग टू बी मेल और फीमेल. अगर फीमेल है तो फिर जो मेंटालिटी है, जो सोसाइटल लाइक हम कह सकते हैं जो मानसिकता है लोगों की, तो कुछ लोग क्या करेंगे, अपने अगर बेटा है तो उसे कंटिन्यू करेंगे, बेटी है तो उसे क्या है उसको मार देते हैं. सो ऐसा अगर करते रहेंगे बार बार तो ऐसा हो रहा है हमारे देश में. इससे क्या हो, अभी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वी आर फेसिंग ए वेरी बिग प्रॉब्लम. सेक्स रेशियो बहुत खराब है हमारे देश में, बहुत सारे राज्यों में बहुत ही ज्यादा खराब है. एग्जाम्पल के तौर में देखिए राजस्थान, यूपी, हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो सेक्स रेशियो है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे बीमारू जो स्टेट हम जिसे बोलते हैं, वहां पे जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ही कम है. मतलब पर 1000 मेल में ऑलमोस्ट 800 and 840 ऐसा करके आपका फीमेल है. तो 150 या 200 के आसपास जो फीमेल है पर 1000 वो कम है. ठीक है, तो अगर फीमेल कम होता गया तो क्या होगा, एक दिन सोसाइटल इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना. सो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी. जितने मेल है उतने फीमेल होने चाहिए, है ना. जैसे अगर आप पूछोगे सर हर राज्य में ऐसा है क्या देश में हमारे, नहीं ऐसा नहीं है. कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे फीमेल का नंबर ज्यादा है. बता सकते हो कौन सा राज्य है? सोचो. दैट इज योर केरला. केरला इज अ स्टेट वेयर द नंबर ऑफ फीमेल इज मोर इन पर 1000 मेल. मेल के पर 1000 मेल में फीमेल का नंबर ज्यादा है केरला में. ठीक है, दैट इज ओनली स्टेट इन इंडिया. Apart from that, and most of the state, it is not like that. It is not the case, especially in Haryana. Now, next is metabolic disorder can also be detected by phenylketonuria. Example is phenylketonuria. अब देखो जो abnormalities हमने डिस्कस किया, Klinefelter's, then Turner syndrome, ठीक है, उसके बाद Down syndrome, उसके बाद ये जो सारे आपने सिंड्रोम डिस्कस किए जो आपकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज होता है जो भी जेनेटिकली रिलेटेड होता है. जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं किसी बेबी को, उसको बोलते हैं फिनाइलकीटोनुरिया. ठीक है, तो ऐसा भी अगर किसी, एक्चुअली ये जो जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसी एबनॉर्मलिटीज अगर किसी बेबी में है, शुरू से अगर है, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक रीजन, जेनेटिकली ऐसा है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बेबी टू सर्वाइव. ऐसे बेबीज बहुत कम सर्वाइव करते हैं, ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करते हैं, और जब तक भी सर्वाइव करते हैं तब तक दे आर लिविंग अ वेरी टफ लाइफ. सो दैट्स व्हाई टू अवॉइड दिस like this unwanted and very painful situation, to avoid this painful situation. See, अभी किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को इस तरह के पेनफुल सिचुएशन में देखना, it is just like living in hell for them. So to actually prevent or to actually to help the parents that they should not have this experience, so what we can do, so in the beginning we can check it, and if it is there, if there is any problem the very early stage, okay, मतलब within 1 month भी हम ये कर सकते हैं, तो क्या होगा, it is not it's not a unhealthy practice, and it is okay for the mother as well, क्योंकि जब fetus बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है तो उसे रिमूव करना मदर्स वूम से वो डिफिकल्ट नहीं होता, वो इजी होता है कंपैरेटिवली. बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव. इफ यू ट्राई इट देन इट इज आल्सो गोइंग टू किल द मदर एज वेल.
ठीक है, माँ का जो आपके मदर है उसका भी डेथ हो सकता है अगर हम लेटेस्ट स्टेज में ये काम करने जाए, अगर बेबी को हम मदर्स वूम से निकालें, ठीक है, सेपरेट कर दे, क्योंकि प्लासेंटा तो बन जाता है, जैसे कि आफ्टर 3-4 मंथ्स या 5 मंथ्स के बाद अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, अगर हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे ग्रोइंग फिटस को, तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर बोथ मदर, स्पेशली फॉर द मदर, राइट। नाउ इफ समथिंग मेजर इज डिटेक्टेड, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हम क्यों ये करते हैं। सो इफ समथिंग मेजर इज डिटेक्टेड that is abnormal, which is going to be very very harmful for the newborn or the individual, then the medical termination of pregnancy can be done. तो अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होने वाला, जैसे कि जेनेटिकल प्रॉब्लम जो है, हमने बात किया टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, देन फिनाइलकीटोनुरिया, क्लेन-फेल्डर सिंड्रोम, ठीक है, ऐसा अगर कुछ हमें मिला तो हम ये अगर बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला है फ्यूचर में, तो हम क्या कर सकते हैं। सो we can medically terminate the pregnancy. That means we can remove or we can abort the pregnancy. ठीक है, तो अबॉर्शन कर सकते हैं लीगली, उसी को हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उस मेथड को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये हम कब कर सकते हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब एमनियोसेंटेसिस करने के बाद हमें ये पता चले कि जो बेबी है, ग्रोइंग फीटस है, उसमें एबनॉर्मेलिटी है और जो कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला है, देन वी कैन डू इट, राइट। बट नॉट सिंपली वी कैन नॉट डू इट ओनली टू अवॉइड पर्टिकुलर सेक्स बेबी। ऐसा नहीं, हम वो सेक्स डिटर्मिनेशन करके अपने चॉइस का बेबी रखने के लिए ये जो अबॉर्शन है वो हम नहीं कर सकते, वो इलीगल है। अगर ऐसा कोई करता है तो दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ, राइट, as per the present scenario, as per the present rule. Now next we'll talk about sexually transmitted disease. अब देखो, हम जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि देयर आर सर्टेन थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अवेयर, द पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दोज थिंग्स। तो उसमें से क्या था कि जो डिजीजेस आर देयर व्हिच इज रिलेटेड विद द reproductive system, and that should be also be that knowledge, it should also spread in the common public. इससे क्या होगा, लोगों को जितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज के बारे में पता चलेगा तो उन्हें ये समझ में आएगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है, सो दे कैन कंसल्ट द डॉक्टर अकॉर्डिंगली एंड दे कैन मेंटेन देयर healthy reproductive system. So that's why we also need to discuss the sexually different types of disease related with the reproductive system. So first we'll talk about sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease मतलब क्या होता है, the disease which can transfer sexually. ठीक है, तो by sex, if there some diseases are transferred, those diseases are known as sexually transmitted disease. ठीक है, और इन disease का दूसरा नाम क्या है, venereal disease भी कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, venereal disease और sexually transmitted disease, और शॉर्ट पे STDs। ठीक है, क्या बोलते हैं, STDs। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हम सब बात करेंगे। पहला है क्लमाइडियोसिस। ठीक है, क्लमाइडियोसिस इज द फर्स्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वी नीड टू डिस्कस। इसमें क्या होता है, कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, उसका नाम है क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस, that is the causative organism, and this is the most common bacterial STDs. ठीक है, ये सबसे कॉमन बैक्टीरियल STD है और इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, इट caused by a bacteria, नाम क्या है उसका, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, और ये बहुत कॉमनली और ये बहुत ही कॉमन डिजीज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और सेक्सुअली इट कैन बी ट्रांसफर सेक्सुअली, और ये बहुत ही कॉमन, हमें ज्यादातर हमें ये वाला डिजीज बहुत कॉमन भी दिखता है। इसका नाम है क्लमाइडियोसिस। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स मेल केस में हमें क्या मिलेगा,
The male will have painful urination. Urination painful matlab during the time of passing the urine, they're feeling some pain. Okay, so it is painful. Urination is painful. Okay, in case of male. तो symptoms male का ऐसा है. और क्या होता है? Thick pus-like discharge from penis. और क्या होगा? एक तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगा, पेन होगा, और क्या होगा कि पेनिस से पस लाइक जो आपका डिस्चार्ज है, पस लाइक जो डिस्चार्ज है वो होगा. देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ पस लाइक सब्सटेंसेस फ्रॉम द पेनिस. सो दिस आर द सिम्टम्स इन केस ऑफ मेल. फीमेल में क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स. सर्विक्स जो है वो इन्फ्लेमेट हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा या इन्फ्लामेट हो जाएगा. ठीक है. और कहां पे इन्फ्लामेशन होगा? यूटेरस एंड फेलोपियन ट्यूब. कहां का होगा? सर्विक्स, यूटेरस एंड फेलोपियन ट्यूब. ठीक है. एंड इफ नॉट ट्रीटेड, तो अगर ऐसा हुआ कि फेलोपियन ट्यूब इनको अगर ये डिजीज हो गया किसी फीमेल को, क्लमाइडियोसिस, और उससे क्या हुआ कि जो आपका फीमेल जो पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है जैसे सर्विक्स, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, इसमें इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है, हो जाता है. और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ ठीक से तो क्या होगा? दिस कंडीशन actually is also known as pelvic inflammatory disease. Okay. और अगर ये ट्रीट नहीं होगा तो ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इसमें. और इस डिजीज का नाम क्या है? इसको बोलते हैं इन केस ऑफ फीमेल पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. क्या बोलते हैं इसे? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इन केस ऑफ फीमेल. ठीक है. अभी करता क्या है? It can infect the infection in all parts of the reproductive system. It can infect the all means the complete reproductive system is actually infected by this bacteria once it's started. एक बार ये अगर infection हो गया तो ये पूरा reproductive system को infect कर लेता है, male और female केस में. And finally it can also lead to sterility. So that is very dangerous. अगर treatment नहीं होगा, अगर ऐसे ही continuously ऐसा ही चलता रहा तो it can also lead to sterility. Sterility मतलब the particular individual, male or female, they will lose the capacity to reproduce. Gametogenesis नहीं होगा ठीक से और reproduction नहीं कर पाएंगे. Reproductively they become passive, sterile हो जाएंगे अगर ये treatment, इस disease का treatment नहीं हुआ तो. ठीक है. Treatment क्या है? Antibiotics like tetracycline, then erythromycin are used for treatment. तो अब ये बैक्टीरियल डिजीज है तो ऑब्वियसली हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे. सो देयर आर सम एंटीबायोटिक्स व्हाट वी यूज टू ट्रीट this disease. Fine. So next we'll talk about the next disease, that is your gonorrhea. Gonorrhea क्या है? It is caused by Neisseria gonorrhea. ठीक है. So it is also a bacteria, Neisseria gonorrhea. So I forgot to underline. You have to underline. This is a scientific name. So you have to underline this. So Neisseria gonorrhea, it's a bacteria which is a gram-negative bacteria and Diplococcus. It is a Diplococcus type gram-negative bacteria. नाम क्या है इसका? Neisseria gonorrhea, which cause the disease called gonorrhea. ठीक है. तो कौन ये डिजीज कॉज करता है? ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव है, डिप्लोकोकस है. ठीक है. नेचर क्या है इसका? डिप्लोकोकस है. और ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? नेसेरिया गोनोरिया. सिम्टम्स क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं. सिम्टम्स आर मोर ऑब्वियस इन मेल. इसके जो सिम्टम्स है वो सबसे ज्यादा हमें किस में मिलता है? मेल में ये सिम्टम्स हमें ज्यादा, इसके सिम्टम्स हमें ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखते हैं. ठीक है. तो सिम्टम्स आर मोर प्रोमिनेंट ऑब्वियस इन मेल. क्या क्या सिम्टम्स हमें मिलेंगे? Inflammation of mucous membrane of urogenital tract. जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है आपके यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में रहता है, हमने डिस्कस किया था. वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है which maintain the lubrication or the mucus or maintain the lubrication inside the urogenital tract, that get inflated. Inflammation हो जाता है उसका. ठीक है. हिंदी में बोलेंगे तो फूल जाता है, इन्फ्लेमेट हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है. इससे क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन व्हाइल यूरिनेशन. इससे क्या होगा? मेल को बर्निंग सेंसेशन होगा. ठीक है. जलन होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूरिनेशन, यूरिन पास करने समय. इन केस ऑफ फीमेल इट कैन लीड टू
अर्थराइटिस। अगर ये फीमेल में होगा तो दिस कंडीशन इफ नॉट ट्रीटेड इट कैन अल्टीमेटली रीचेस एंड इट कैन अल्टीमेटली लीड्स टू अर्थराइटिस कंडीशन एज वेल, ठीक है। और फाइनली इट कैन लीड्स टू स्टेरिलिटी, और फाइनली क्या होगा, स्टेराइल हो जाएगा फीमेल अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहले तो अर्थराइटिस के सिम्टम्स आएंगे, फिर फाइनली क्या होगा, फीमेल स्टेराइल हो जाएगा, ओके। और क्या होगा, if the female suffering from this disease during pregnancy, then inflammation in the conjunctiva in the newborn can be seen, ठीक है। तो अगर ये जो कंडीशन है, ये जो गोनोरिया डिजीज है, अगर फीमेल में हो गया प्रेगनेंसी के समय, अगर इस समय ये डिजीज डेवलप हो गया, तो जो फीटस है, ग्रोइंग फीटस है इनसाइड द मदर्स वूम, उसके जो कंजंक्टिवा है, आंखों का जो कंजंक्टिवा पार्ट है, हमने डिस्कस किया है पहले नर्वस सिस्टम में, सेंस ऑर्गन में बात किया व्हाट इज कंजंक्टिवा, उसमें इन्फ्लामेशन दिखता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम। क्या बोलते हैं, ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम। दैट इज द कंडीशन वेयर इफ the mother is actually infected by the bacteria, and if the mother develop the disease called gonorrhea, so it can also affect the growing fetus as well. As a result, the fetus, in the fetus body, the conjunctiva, it is going to actually inflammate. The inflammation in the conjunctiva can be seen in the newborn, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑफ्थेमिया नियोनेटोरम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज गोनोकोकल ऑफ्थैल्मिया, और क्या बोलते हैं कॉमनली से, गोनोकोकल ऑफ्थैल्मिया, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन इन केस ऑफ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट। नेक्स्ट, और उसका ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द ट्रीटमेंट व्हाट वी हैव इन दिस केस। द ट्रीटमेंट इज अगेन एंटीबायोटिक लाइक एम्फिसिलिन, पेनिसिलिन are used for treatment, ठीक है। So there are some antibiotics which are used to treat gonorrhea, the disease, because this is also a bacterial disease. So normally what we use that is your antibiotic, ठीक है। Next disease का नाम क्या है, syphilis. It is caused by bacteria. Syphilis is also caused by bacteria. तो अभी हम तक जितना भी हम बात कर रहे हैं सब किससे हो रहा है, बैक्टीरियल डिजीज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। शुरू से हमने जो भी बात किया, मतलब आपके व्हाट इज दैट, गोनोरिया, देन क्लैमाइडियोसिस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिफिलिस, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेस है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है सिफिलिस के केस में, दैट इज योर ट्रिपोनियोमा पैलिडम। ट्रिपोनियोमा पैलिडम इज द बैक्टीरिया व्हिच कॉज द डिजीज दैट इज कॉल्ड सिफिलिस, ठीक है। एंड दिस पैथोजन दैट इज ट्रिपोनियोमा पैलिडम is actually transplacental, ठीक है। तो transplacental मतलब it can pass through the placenta, that's why it is very dangerous. So अगर ये placenta का barrier cross कर सकता है तो ये fetus में चला जाएगा, it can cause disease in the fetus as well, क्योंकि placenta cross कर सकता है तो ये fetus में चला जाएगा, fetus को affect करेगा, ठीक है, और fetus में भी disease cause करेगा। उसी को हम बोलते हैं congenital syphilis, ठीक है। अगर किसी फीमेल को ये डिजीज है, सिफिलिस है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये कंडीशन है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा एंड इट कैन कॉज डिजीज इन द फीटस एज वेल। अगर ऐसा होता है तो उस डिजीज को, फीटस में जो डिजीज हो रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, इस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स, पहला द प्राइमरी स्टेज, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस डिजीज। प्राइमरी स्टेज क्या होगा, प्राइमरी स्टेज में सिम्टम्स अलग होगा, सेकेंड स्टेज में सिम्टम्स अलग होगा, टर्शियरी स्टेज में अलग होगा। तो हम बात करते हैं एक एक करके। पहला प्राइमरी स्टेज, इसमें क्या होगा, ड्राई, हार्ड, बैक्टीरिया फिल्ड सोर्स अपीयर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, ड्राई होगा, बैक्टीरिया फिल्ड सोर बनेगा आपके मतलब बॉडी में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव पार्ट में सोर हमें दिखेंगे, एंड दैट इज एक्चुअली हार्ड इन स्ट्रक्चर एंड विच आर फिल्ड विद बैक्टीरिया, उसके अंदर बैक्टीरिया भरे रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो 90% जेनिटलिया, 10% लिप्स एंड फिंगर्स। तो 90% ये जो सोर्स बनेंगे वो कहां बनेंगे, जेनाइटल पार्ट पे बनेंगे, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसमें बनेंगे, और सिर्फ 10% जो है फिंगर और लिप्स में होगा। नाउ दीज सोर्स आर आल्सो नोन एज चांसर।
अब ये जो हार्ड सोर्स बनेंगे पहले, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसमें 90%, लिप और फिंगर में 10%, वो जो उसका उसका एक दूसरा भी हमने नाम, हम दूसरा नाम से बुला सकते हैं, उसको बोलते हैं चैंसर, CHANCER, चैंसर। ठीक है, ये पहला स्टेज है, पहला स्टेज में ऐसा सिम्टम्स होगा। चलिए सेकेंड स्टेज में कैसा होगा? इन द सेकेंडरी स्टेज, in this stage lesion appear on the mucous membrane during this stage. Other symptoms like mild fever, loss of appetite can be seen. पहले हार्ड सोर बनेंगे, अभी क्या हो जाएंगे? लीजन बन जाएंगे। ठीक है, पहले हार्ड सोर बना, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? लीजन्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहां पे? ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग दिस स्टेज, राइट। और क्या होगा उसके साथ? और भी कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि माइल्ड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, ठीक है, हल्का बुखार, ये सिम्टम्स आएंगे सेकेंडरी स्टेज में। फाइन। Next is final stage, that is your tertiary stage we are going to discuss. So tertiary stage, that is your bacteria spread to internal organ. अब ये tertiary stage में क्या होता है? बैक्टीरिया सिर्फ रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन सिस्टम उसमें सीमित नहीं है, इट हैज ऑलरेडी रीच्ड, कहां तक चला गया? इंटरनल ऑर्गन तक स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, एंड इट कैन लीड टू मेंटल डिसऑर्डर। अगर ऐसा कंडीशन tertiary stage चला गया सिफिलिस का, so it can also cause mental disorder, right? And this, because this is a transplant bacteria, transplacental bacteria, so that means movement can also, placental movement can also be seen, मतलब ये placenta क्रॉस करके fetus के बॉडी में चला जाएगा। Then the sores become large and fluid filled, known as gumas. जब हार्ड स्ट्रक्चर सोर्स के थे तो उसे बोलते हैं चैंसर, और जब लास्ट स्टेज में टर्शियरी फेज में क्या होता है ना, एकदम फ्लूइड से ये भर जाते हैं, ये सारे सोर्स सॉफ्ट हो जाते हैं और बड़े बड़े बन जाते हैं, जैसे बॉयल जैसे। ठीक है, एंड दैट टाइम वी कॉल इट एज गुमास। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। ट्रीटमेंट कैसा होता है? अगेन एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, सो टुडे विल टॉक till this. In the next video lecture we'll continue and we'll try to finish the other topics. Fine. So till then, take care. Thank you. Stay at home. Be safe.